हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? दैट्स गुड। कंटिन्यू करते हैं आज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 11। फाइन, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 16th onwards. It's a good question, very important for exams also. It's given that x plus iota y whole cube, x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v. Fine. We have to prove that u by x plus v by y, u by x plus v by y is equal to 4x square minus y square. This is our question to prove that u by x plus v by y is equal to 4x square minus y square. देखिए कैसे करेंगे, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं एंड कैलकुलेशन को इस वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। वी नो a plus b whole cube, a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Fine. Class 8th. So this is written as x cube plus 3x square. Y is iota y. This is a, iota y is b. Plus 3x iota y square plus iota y cube is equal to u plus iota v. Fine. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube is equal to u plus iota v. Simplify करें इसको. This gets you what? X cube plus 3x square y iota. This will be what? 3x y square iota square, and this will be y cube iota cube u plus iota v. एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, आप सीधा कैलकुलेट कर सकते थे, आयोटा स्क्वायर को यहां माइनस में चेंज कर सकते थे और आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख के सीधा इसको इसी वाले फॉर्मेट में कर सकते थे। बट इट्स गुड टू राइट वन स्टेप एक्स्ट्रा कि एरर्स नहीं हो। 3x square y iota, this iota square is what? This iota square is what? -1. So this will become minus 3xy square. Fine. This iota square becomes -1. So ये this multiplied by this will become minus, and iota cube is what? Iota cube is minus iota. तो iota cube को minus iota पुट करेंगे तो कितना रहेगा? minus y cube iota is equal to u plus iota v. Now this gets you what? इसका रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट हो जाएगा बच्ची ये x cube minus 3xy square is the real part. What is this imaginary part? आयोटा वाला पार्ट, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। 3x square y minus y cube, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। 3x square y minus y cube आयोटा is equal to u plus iota v. Fine. So इस वाले केस में on comparing again, we got two complex number, one on the left, other on the right. So if the two complex numbers are equal, a plus iota b is equal to c plus iota d, as we discussed in the last question also, then real is equal to real and imaginary is equal to imaginary. A is equal to c and b is equal to d. This is all rough work. This side is all rough work. Fine. So now these two complex numbers are equal. So this real part of left hand side is equal to real part of right hand side. So x cube minus 3xy square is equal to u, and imaginary part of left hand side is equal to imaginary part of right hand side. 3x square y minus y cube is equal to v. ये रियल इस रियल के बराबर हो गया और ये वाला इमेजिनरी आयोटा वाला कोफिशिएंट 3x square y minus y cube किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया। अब आप देखें हमको क्या चाहिए? What we want? We want u by x. We want u by x. तो हमारे पास ये, आप इसको u को आप इधर भी लिख सकते हैं, u is equal to this, और इस वाले v को आप इधर भी लिख लें, v is equal to this. फाइन, आप ऐसा करके लिख लें।
Now this can be written as, if I divided by x both side, u by x, x क्यूब को x के डिवाइड किया, कितना रहेगा x के माइनस 3y स्क्वायर. फाइन. x से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज आई वांट टू गेट u by x. तो u by x लाने के लिए मैंने x से डिवाइड किया, u by x, x क्यूब by x is x square and 3x y square by x is 3y square. Other side we want v by y. तो dividing by y both side, तो this will become v by y 3x square. ये y को y से डिवाइड करेंगे, y गया. फाइन. Then this is y cube by y is y square. तो y से इसको डिवाइड कर दिया, y से इसको डिवाइड कर दिया, y से इसको डिवाइड कर दिया. Let's say this is equation 1, this is equation 2. अब हमने दोनों को ऐड करना है, u by x and v by y. तो आप ऐड करते हैं u by x and v by y on adding 1 and 2. क्या आएगा जी? u by x plus v by y. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करो. x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर कितना रहेगा? 4x स्क्वायर. फाइन. माइनस 3y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर कितना रहेगा? माइनस 4y स्क्वायर. सो दिस गेट्स यू व्हाट? अगर आप कॉमन लें तो कितना रहेगा? 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. यही प्रूव करना है बच्चे हमको. x u by x v by y is equal to 4x square minus y square. u by x v by y is equal to 4x square minus y square. Hence proved. ठीक है. वीडियो देखने के बाद जरूर लिख के देखें कि आपका भी कैलकुलेशन उस पार्ट पे आता है. एक बार नहीं आए दोबारा वीडियो देखें, वर्किंग देखें, सॉल्यूशंस में एक एक स्टेप ब्रीफ किया है, कैसे लिखना, कैसे वर्किंग है. पूरी सपोर्ट आपके साथ है. क्वेश्चन आंसर वीडियो डिटेल्ड, then step by step of a solutions, everything is detailed for you. Fine. Look at the next question. This is one of the best question of the complex number. Fine. Number 1 rating of a complex number to ask in the exams. See what is it. This is question 17. Miscellaneous question 17 is the number 1 rating, the best question of the complete chapter. Is given alpha beta are the two different complex number. Fine. If alpha beta are two complex number given and absolute of beta is equal to 1 given, find the value of. आपको क्या दिया हुआ है? हमें वैल्यू निकालना है बच्चे बीटा माइनस अल्फा by 1 minus alpha dash beta. This we have to find out. Fine. Absolute of beta is equal to 1 दिया हुआ है. This is given. This is given and we have to find that this value beta minus alpha by 1 minus alpha dash beta. ये हमको फाइंड करना है. This is my question. Absolute of beta is equal to 1 given. Beta minus alpha divided by 1 minus alpha dash beta. We have to evaluate where alpha beta are the what? Two complex number. One of the best question of the exercise. See how to do this. Fine. इस केस में आपको थोड़े से पॉइंट साथ साथ में रिमेंबर करने की. पहला पॉइंट एक याद रखना है कि पहली प्रॉपर्टी कि एब्सोल्यूट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू इट्स कॉन्जुगेट होता है जी. किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है. सी हाउ टू प्रूव दिस. इफ आई से लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस बिकॉज दीज आर द टू रिजल्ट्स विल बी यूजिंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन. तो पहले ही देखते हैं ये वाले रिजल्ट्स में जो हमने वर्किंग की इसको प्रूव कैसे करेंगे. सपोज करो z a प्लस एयोटा भी है. लेट फाइन. तो z बार कितना रहेगा बच्चे? z बार विल बी व्हाट? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. तो कितना रहेगा ये? दिस विल बिकम व्हाट? a माइनस एयोटा भी. अब z और z बार को मल्टीप्लाई करें आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? a प्लस एयोटा बी इंटू a माइनस एयोटा बी. तो कितना रहेगा? a स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. और ये कितना रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये कितना रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फाइन. और नाउ व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? आप ध्यान से देखेंगे. एब्सोल्यूट ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर कितना रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस z bar
is a square plus b square and absolute of z square is also a square plus b square. So that means z bar is equal to absolute of z square. ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया. Complex number multiply by its conjugate is absolute of z square. A very important property. Why? Because complex number multiply by its conjugate is a square plus b square and absolute of z square is also what? A square plus b square. So this proves that this left hand side is equal to this left hand side. तो ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया. ठीक है. अब एक और रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है. वो रिजल्ट क्या है आपका? सेकंड वाला जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं. देखिए इसको कैसे कवर करते हैं. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये दो रिजल्ट्स यूज होंगे. फाइन. सी इनको पहले को मैंने प्रूव कर दिया. सेकंड को कैसे प्रूव करेंगे? इसको व्हाट वी से कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट. पहले z का कॉन्जुगेट लिया फिर उसको फिर से कॉन्जुगेट लिया तो वापस वो नंबर हो जाएगा. कैसे हुआ? जैसे z is equal to a plus iota b is a complex number, then its conjugate is given as a minus iota b. इसको कॉन्जुगेट कर दिया ना, आयोटा के साइन को प्लस का माइनस कर दिया, कॉन्जुगेट आ गया. अब फिर से इसको कॉन्जुगेट करो, फिर से कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट किया तो आयोटा का साइन चेंज करेगा, क्या बन जाएगा? आयोटा b. और ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट सेम. दिस नंबर a plus iota b is same as this and this is equal to z. So that means conjugate of a conjugate is the number itself. Conjugate of a conjugate is the number itself. तो ये याद रखना है. Conjugate of a conjugate is a number itself. फिर से बोलेंगे. Conjugate of a conjugate is a number itself. Fine. Conjugate of a conjugate is a number itself. And absolute of z is equal to z into z conjugate. ये दो फॉर्मूले जो मैंने भी प्रूव किए, ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है. मैंने बता भी दिया कि कैसे आती है. फाइन. देखिए इसको कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय. अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब मेरे इस क्वेश्चन में ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा. ये पूरा जो एब्सोल्यूट के अंदर पड़ा हुआ है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है. दिस इज कंप्लीट z. ये पूरी इस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे? इस पूरे नंबर को बोलेंगे z है ये. दिस इज माय z. तो एब्सोल्यूट ऑफ z देखेंगे पहले. अगर ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ दिस रिप्रेजेंट्स कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो आई कैन राइट, वी कैन राइट absolute of beta minus alpha by 1 minus alpha dash beta. इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा इनटू इट्स कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी. किसी भी कॉम्प्लेक्स z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एब्सोल्यूट स्केल क्या होगा? नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट. अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा z है, तो उसका एब्सोल्यूट स्केल क्या होगा? पूरा z नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट. तो इसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखेंगे? ऊपर की डैश आ जाएगी. एब्सोल्यूट ऑफ z स्केल इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज, और एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट. ये लाइन डालनी जरूरी है बिकॉज z एब्सोल्यूट ऑफ z बार इज z एज इट इज इनटू z bar. This is a very very important step because of this. This is complete z. Absolute scale is z into z bar. ये dash लिख दी थी because of this, और ये हमने प्रूफ किया हुआ है. अब आप देखिए इसको सेकंड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे जी. आप ये लिख सकते हैं ऊपर बीटा माइनस अल्फा और ये पूरे का कॉन्जुगेट है तो ये हो जाएगा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश. ये बीटा माइनस अल्फा के ऊपर पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट था ना, तो ये बीटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट हो गया, अल्फा के ऊपर भी कॉन्जुगेट हो गया. और नीचे क्या आएगा बच्चे? ये कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ये एज इट इज लिखा. और ये कितना रहेगा जी? 1 माइनस अल्फा डैश के ऊपर फिर से डैश हो गया. एक अल्फा डैश ये और ये वाला बाहर ब्रैकेट के बाहर एक और कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट. और ये बीटा के ऊपर क्या हो गया? कॉन्जुगेट. So beta minus alpha, beta dash minus alpha dash, फिर नीचे 1 minus alpha dash beta, फिर कितना आ जाएगा? 1 as it is, alpha dash के ऊपर ये वाला डैश और ये बीटा के ऊपर ये वाला डैश, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के बाहर ये डैश था, कॉन्जुगेट था. इज अ कॉन्जुगेट ऑफ द कंप्लीट नंबर. आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का सेम फॉर्मेट है. मल्टीप्लाई करेंगे इस बीटा को बीटा से, बीटा बीटा डैश. बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, z, इट्स एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो b मल्टीप्लाई बाय बी डैश इज b डैश
माइनस बी अल्फा डैश माइनस अल्फा बी डैश, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस अल्फा डैश, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट, अल्फा डैश का डैश क्या बन जाएगा, अल्फा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, अल्फा। तो देखें क्या होगा जी, आप चाहें तो इसको अब इसको नाउ विल यूज दिस एज व्हाट, अल्फा, तो कितना आ जाएगा 1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज व्हाट, अल्फा बीटा डैश, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट क्या बन गया, अल्फा ना, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा डैश। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस अल्फा डैश बीटा, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अल्फा डैश तो क्या बन गया, अल्फा, तो ये अल्फा है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा डैश इंटू अल्फा डैश बीटा कितना रहेगा, अल्फा इंटू अल्फा डैश आ जाएगा एज इट इज अल्फा डैश, और ये बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा डैश। फाइन, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर से पता क्या कर लो, इसको अल्फा डैश को आप अल्फा लिख लो, इसको अल्फा लिख लो, और ये कितना रहेगा 1 इंटू दिस इज 1 इंटू अल्फा बीटा डैश इज दिस, अल्फा डैश बीटा इंटू 1 इज अल्फा डैश इंटू अल्फा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, अल्फा डैश इंटू अल्फा इज अल्फा डैश, एंड बीटा इंटू बीटा डैश इज बीटा डैश। नाउ दिस इज व्हाट, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स का एब्सोल्यूट स्केल आता है, तो बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा डैश उसका कॉन्जुगेट है, तो ये कितना बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश। सेम नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी, नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट इज एब्सोल्यूट ऑफ z स्केल, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या है, यहां पे कॉम्प्लेक्स z है, यहां पे कॉम्प्लेक्स अल्फा है, तो एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा स्केल आ जाएगा, अल्फा डैश इज एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा स्केल and beta dash is absolute of beta scale. Why? Because of this property. 1 minus alpha beta dash minus alpha dash beta plus alpha dash because of this property. Number into its conjugate is absolute of alpha scale, and beta dash is absolute of beta scale. But absolute of beta scale is what? Absolute of beta is given you what? 1. Because absolute of beta is given as 1. तो एब्सोल्यूट ऑफ बीटा स्केल क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, ये गिवन में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट ऑफ बीटा इज 1, तो एब्सोल्यूट ऑफ बीटा स्केल भी क्या हो जाएगा 1, तो इसको भी 1 डाल दें, माइनस बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश प्लस एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा स्केल माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा, एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा स्केल एज इट इज आ जाएगा बच्चे, और फिर से एब्सोल्यूट ऑफ बीटा स्केल क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 स्केल लिखने की जरूरत नहीं है जी। अब देखें 1 अल्फा बीटा डैश कितना आ गया, अल्फा बीटा डैश बीटा अल्फा डैश एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा स्केल, दोनों सेम है जी, ऊपर और नीचे सेम है, सारी टर्म सेम है जी। फाइन, ये 1 आ गया, ये अल्फा डैश बीटा है, यहां पे ये अल्फा डैश बीटा है, ये माइनस अल्फा बीटा डैश है, माइनस अल्फा बीटा डैश है, प्लस अल्फा स्केल है, तो दिस कंप्लीट कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे कैंसिल करते हैं, अलग अलग ना कैंसिल करें बच्चे, अगर a plus b divided by a plus b है तो we have to write cancel like this to write the answer। कुछ if somebody is writing like this cancelling like this तो that means वो a को a से कैंसिल कर रहा है, b को से ऐसे नहीं डिवाइड हो रहा, ये पूरा सेम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, x divided by x is 1 complete 1 factor, so just cancel it by 1, ठीक है जी। so this is 1, so what he is saying is अगर इसका होल स्केल 1 है, so if I say that beta minus alpha by 1 minus alpha डैश बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 1, तो जब ये होल स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो जब मेरे को वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ इस एब्सोल्यूट स्केयर की नहीं, नॉर्मल की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या रह जाएगा आंसर, तो भी 1 आएगा। सो इफ होल स्केयर इज 1 दैट मींस दिस इज 1, सो इफ दिस होल स्केयर इज 1 सो दैट मींस दिस नंबर इज आल्सो स्क्वायर रूट लिया, तो एब्सोल्यूट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्लीज डू सी टू इट। And one more point to be taken care, question number, let us say question number 18, बहुत सिंपल है, 18, 19, 20 आखिरी के 2-3 क्वेश्चन है, दिस इज 1 मिनट वर्कआउट, फाइन, इसको वर्किंग कर लेते हैं।
he is saying in the next question that find the number of non-zero integral solutions. 1 minus iota absolute x to the power of 2 की power x. This is question number 18. Miscellaneous question 18. Fine. 1 minus iota power x 2 to the power of x. Find non-zero integral solutions. Non-zero integral solution निकालना है x का. Non-zero इंटीग्रल सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में क्या करें? फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन. देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. तो एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x है. तो पहले ना लेट अस कंसीडर लेट व्हाट इज 1 माइनस आयोटा. एब्सोल्यूट क्या स्टैंड करता है? एब्सोल्यूट ऑफ अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो एब्सोल्यूट ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Fine. So same way, this is written as, this is equal to what? This is under root of a square 1 square plus of minus 1 square. This is under root of 2. This is 2 to the power of 1 by 2. Under root 2 means 2 to the power of 1 by 2. अगर ये वाले पोर्शन को सिर्फ मैंने इसको कंसिडर किया है, we got this value. This implies 1 minus iota की power x. अगर power x करेंगे तो ये एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या हो गया? 2 टू द पावर 1 by 2. तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 2 टू द पावर 1 by 2 और ऊपर क्या आ जाएगा? x. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस. तो इसको इससे रिप्लेस किया, ये आ गया 2 की पावर 1 by 2 और बाहर जो है x है इसे छोड़ दिया. फाइन. नाउ दिस विल बी व्हाट? दिस इज पावर टू द पावर x टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n. पावर टू द पावर गेट मल्टीप्लाई m into n. So this will become 1 by 2 into x कितना रहेगा? x by 2. So my left hand side, ये मेरा रफ कैलकुलेशन था. इसको फिर मैं शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज इफ एनीबडी वांट टू सी कैन सी इट. नाउ आई कैन राइट, नाउ वी कैन राइट ये इसको क्या लिखेंगे जी? 1 माइनस आयोटा x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर x कितना आ गया? 2 की पावर x प्लस 2x by 2. 2 की पावर x. दोनों में बेस सेम है. 2 बेस इज सेम. इफ द बेस आर सेम we can equate the exponents. So that means this power will be equal to this power. X by 2 is equal to x. So I can say x is equal to 2x. Fine. और we can say इसको इधर लेके जाते हैं तो that is 2x minus x कितना आ गया? 0. तो x is equal to कितना आ गया? 0. फिर से देखेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे. आप बोलेंगे सर कई बच्चे क्या करते हैं, x को 2x लिखा और x को कैंसिल कर दिया. भैया वेरिएबल कैंसिल नहीं होते दोनों साइड में. कैंसिलेशन मींस यू डिवाइडिंग बाय x. You can divide when you're cancelling something, that means you're dividing by x. Division by any number is possible if it is non-zero. उसने कुछ बताया नहीं कि x non-zero है, तो आप x कैंसिल नहीं कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे? इस x को उधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस x यहाँ क्या हो गया? 0. तो x इज इक्वल टू 0 हो गया. तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो उसके अंदर x का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन. इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 so on, -1 -2 -3. कह रहे हैं नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है. 0 नहीं चाहिए जी, और आंसर तो 0 ही आ रहा है. तो लिखेंगे फाइनल आंसर लिखेंगे therefore the given equation has no non-zero integral solutions. Therefore the given equation has no. जब x is equal to 0 आ गया तो नॉन जीरो सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है. द गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे राइट पर. Next question में he is saying it. You've given this number as a plus iota b. Question number 19. Fine. Into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a square plus b a square plus a plus iota b. Fine. हमको प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है हमको?
हमको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है। दिस इज माय क्वेश्चन। फाइन। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने ब्रीफ भी किया था। आपको आयोटा से, आयोटा की फॉर्म दी हुई है और स्क्वायर में आना है। जब भी आयोटा से स्क्वायर में जाना है तो पहले कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। हमारे पास आयोटास दिए हुए हैं, हमको स्क्वायर्स में जाना है तो इसको 1 ले लो। ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट, ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट, कॉन्जुगेट लेंगे। ए प्लस योटा बी का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? ए माइनस योटा बी। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? सी माइनस योटा डी। कॉन्जुगेट मीन चेंज द साइन ऑफ योटा पार्ट, जी माइनस योटा एच। और इसका कॉन्जुगेट कितना रहेगा? ए माइनस योटा बी। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई। सब में योटा का साइन चेंज कर दो, कॉन्जुगेट हो गया। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट। क्या आएगा बच्चे मेरे पास? मल्टीप्लाई करो इस वाले फैक्टर को पहले वाले फैक्टर से, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सी प्लस योटा डी को सी माइनस योटा डी में कर लेंगे, कितना रहेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ऐसे जब इसको a प्लस योटा बी को a माइनस योटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वैसे जैसे आयोटा स्क्वायर आया था, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? माइनस, प्लस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही प्रूव करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। Simple. Fine. This kind we already done in the working. Look at the last point. Fine. Last point of this is, last point में कह रहा है 1 plus क्वेश्चन 20। कह रहा है 1 प्लस एयोटा बाई 1 माइनस एयोटा, 1 प्लस एयोटा बाई 1 माइनस एयोटा की पावर m इज इक्वल टू आयोटा। फाइन, इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कहता है इसको सेटिस्फाई करते हुए सबसे छोटी वैल्यू निकालो। व्हाट इज सेइंग इट? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा की पावर m में व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकाल लीजिए। फाइन, तो आप पहले क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा को सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। इस वाले पोर्शन को डिस्कस किया, लेट इसको कवर किया। ये वाला ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले कवर कर लेंगे। फाइन, सो दिस विल बिकम व्हाट? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना रहेगा जी? नीचे 1 आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 1, 1 प्लस 1, तो कितना रहेगा? 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये से कटेगा 2 आयोटा बाय 2, दिस इज आयोटा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू आयोटा आ गई। तो दैट मींस हमको, हमारे पास क्या आ गया? आयोटा m। दिस होल सॉल्यूशन ऑफ दिस फैक्टर इज आयोटा। सो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है। सो इफ समबडी आस्क मी व्हाट मिनिमम पावर ऑफ आयोटा गेट्स यू 1, तो अगर आपको याद हो बिगिनिंग में आयोटा की पावर 0 कितना था? 0 था, दैट इज 1 था। एनीथिंग इक्वल 0 इज 1। आयोटा 1 कितना था? आयोटा था। आयोटा स्क्वायर कितना था? माइनस 1 था। आयोटा क्यूब कितना था? माइनस आयोटा था। और आयोटा 4 कितना था? 1 था। तो सबसे छोटा, व्हाट इज द लीस्ट m वेयर वी गेट द आंसर 1? तो 0 1 2 3 4 अगर आप रिव्यू करेंगे तो आयोटा 4, दैट मींस m इज इक्वल टू 4 is the least number. What is the least value of m? That least value of m is what? 4. Fine. This covers A to Z all the solution of miscellaneous exercise chapter 5. This was the last question of miscellaneous, 20th question of miscellaneous. Fine. हमने एक एक पॉइंट को कवर किया है, एक एक पॉइंट के ब्रीफ सॉल्यूशंस हैं, अपडेट हैं। इसके बाद भी मैं आपके साथ 1-to-1 व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहा हूं कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेंशन करेगा, सर मेरे को क्वेश्चन का आंसर टैली नहीं हुआ
और फिर मैं सॉल्यूशन पे गया तो सॉल्यूशन का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर और स्टेप नंबर लिखेगा। आई वांटेड टू से इट कि यार इतनी वीडियो की ब्रीफिंग के बाद, क्वेश्चंस की ब्रीफिंग के बाद, सॉल्यूशन देने के बाद अगर कोई बच्चा ठीक करता है तो उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी, उसकी जो सबसे पहला पॉइंट बोला था इक्वेशन टेस्ट। अगर इक्वेशन टेस्ट में आपके जितने भी 20 से कम नंबर है, फाइन 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 20 इंटू 5 100 मार्क्स। अगर आपके 19, 18, 17 या किसी के 15 से कम नंबर आ रहे हैं, 10 से कम नंबर आ रहे हैं, फिर उतने परसेंट ब्रेन की वर्किंग भी कम है। अगर आप सिर्फ एक सबसे पहला फॉर्मेट था इक्वेशंस, अगर आप इक्वेशन के 20 क्वेश्चन की शॉट ठीक नहीं प्ले कर रहे हैं तो एक्चुअली दैट इज समवेयर यू आर मिसिंग इन बॉडी माइंड लैंग्वेज, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज ऑल फॉर दिस वर्किंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the rest of the point left in. Fine. Bye bye. See you in the next class. Thank you very much. Bye bye.